Hello friends, welcome once again. First of all, I congratulate all the ACC 127 candidates who have cleared their ACC written examination, and a total of 3014 candidates have cleared the ACC 127 written. Now this is the list. The first person is Sipai Pankaj Kumar, next is Sachin, Shivam, Rohit. Serial number 5 is Nayak Ravinder Singh Rakwal. Now he is from 21 Mountain Div Signal Regiment. Incidentally, this is the unit from where I went for my GTO course. And this is at Rangia, Assam mein. And my commanding officer was then Colonel M.U. Nair, who today is Lieutenant General M.U. Nair, who is the SONC, Signal Officer in Chief. So my commanding officer is the head of the Corps of Signals today. So that's my association. I'm quite proud to say the SONC was my CO from 21 Mounted Div Signal Regiment. So congratulations to all people, 3014. The end of the list is something like this. 3012 is LAC Padam Singh, 3013 Sipahi Aman Chauhan, 3014 Mithilesh Kumar. So Mithilesh Kumar from 16 Mechanized Infantry is the last person. So congratulations to all of you, 3014. Now I have created a WhatsApp group for ACC 126 and ACC 127 where I keep interacting with you, and I'll suggest you to kindly send a WhatsApp message on 9090099035 and get yourself added into this group. You will get a lot of resources as part of your training preparation, and also I'll be communicating a lot of things about the classes and my movement. Even there is a proposal that I may even go to PDP Pachmari. So do get into this group and we will see how can we help you. Now these 3014 people who have cleared the ACC 127, I'm sure you will be very happy and you aspire to become an officer in the Indian Armed Forces. It's a huge leap from a Jawan to an officer. But please remember, clearing the ACC written will only take you to the gates of the Service Selection Board. And in the Service Selection Board, you will have to face these people, the psychologist, the interviewing officer, and the GTO. And this clearing the written will not necessarily lead to your success through SSB, because SSB itself requires a different level of preparation. Just remember, you have prepared so well for the written examination. You would have spent almost 7 to 8 months. So you cannot prepare for the SSB in 14 days. Written ke liye 8 months and SSB ke liye 14 days ka coaching. That model will not work. So before you become an officer, you have to get recommended by the Service Selection Board, which is a personality based selection, and all the effort so far you have put has only been for the written, and I'm sure you would have done well. That's why you cleared and got into the merit. But SSB is a completely different ball game, and a 14 days conventional model is inadequate. So we'll talk about it more. ACC ka each batch, including 127, will have 75 vacancies. You have 75 vacancies. That means 75 out of 3014 means 2.5% people will only get into the academy. That is if 75 vacancies are fulfilled. That means your performance has to be such that you fall into this 2.5% so that you become part of this 75 who will be called for the training at the ACC wing or the Siachen battalion at IMA. Unfortunately, 75 का वैकेंसी मेरी याद में कभी भी फिल नहीं हुआ था. तो क्वेश्चन इज, क्या इस बार वो 75 फिल होगा, और अगर होगा तो विल यू be part of that 2.5% who are going to make it into the 75? So just imagine 2.5% people will qualify. अगर 75 के 75 होते हैं, rest are going to go out. So that's a level of competition that you're going to face. So please understand,
टेक योर एसएसबी प्रिपरेशन लिटिल सीरियस एंड डू नॉट एज्यूम कि आपका हो ही जाएगा. आई माई सेल्फ अ सर्विस कैंडिडेट, ACC सीरियल नंबर 62 से था, एंड व्हेन आई वेंट देयर this was my academic performance, if that is an indicator of how hard you have worked in your academic studies. So I was 53.73 in 10th, 42% in 11th, 12th I had taken a drop, in fact I was dropped out. Then I joined the army as a Jawan, not to serve in the army, but to get away from the education, पढ़ाई से भागने के लिए. Then I did my 12th in the army, cleared the ACC in first attempt and cleared the SSB also in my first attempt. And I'm sure all the 3014, except for barring few people, I think many of you would be better than me in terms of your academic performance. I don't think 3014 में there'll be many people who were 10th में 53, 12th 11th में 42, 12th drop out and army में आने के बाद 57. अगर कोई हो तो प्लीज लिखना. विद दिस परफॉर्मेंस आई वेंट टू द SSB एंड आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो वेयर इज योर प्रॉब्लम? आप क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हो. और हमारे बैच में भी वैकेंसी 75 का था, बट वी वर ओनली 18 पीपल. आई एम नॉट श्योर उस टाइम 75 था 100 था, आई एम नॉट रियली श्योर. मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि उस टाइम वैकेंसी 75 का था या 100 का था, बट हमारा बैच में दे वर ओनली 18. सो क्वेश्चन इज, क्या आप इस बार 75 ACC विंग में जाओगे? अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो. All the 3014, because you are better than me at the point of start. You can see my academic performance, and my father was a Subedar major. So the question is, if you really want to do well, आपको ये पता होना चाहिए कि SSB एक सर्विस कैंडिडेट से क्या अपेक्षा कर रहा है, और उस अपेक्षा के रिलेशन में आपका प्रेजेंट स्तर कहाँ पे है और उसमें कितना गैप है. उनकी अपेक्षा और आपका अभी का स्तर में कितना गैप है. उस गैप को लेट्स कॉल इट डेल्टा. वो डेल्टा कितना है, एंड नेक्स्ट इज उस डेल्टा को कैसे कम करना. दिस शुड बी योर अप्रोच. सो तो पहला तो व्हाट इज SSB एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ सर्विस कैंडिडेट? SSB is expecting the same thing from a service candidate that is expected from a civilian candidates. What is that? It's a personality based selection. So it was, whether it was Ganesh Babu or whether it is 3014 candidates, SSB is testing your personality, and it is using 3 tools: GTO, psychological test and personal interview, which are the testing tools to test your personality. ये differentiation clear होना चाहिए, और मुझे जरूर लिख के बताना कि ये बात समझ में आ रहा है. मेरे काफ़ी वीडियो में बोला है क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व, और आपके व्यक्तित्व को कैसे टेस्ट कर रहे हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट, GT और इंटरव्यू से. तीनों के पास 225 मार्क्स होता है. कॉन्फ्रेंस में भी 225 होता है. कलेक्टिवली 900 मार्क्स होता है. इसमें से अगर 360 मिल जाए तो आप रेकमेंड हो जाते हो. तो ऑल दिस थिंग्स यू नो, द पॉइंट इज नहीं मिल रहा. 2.5% भी 3014 से अगर क्लियर हो जाए इस बार 75, बट दैट डज नॉट हैपन. इसका मतलब देयर इज लिटिल मोर टू दैट. तो मैं कुछ चीज़ों को मैं यहाँ बताऊंगा, और आप लोग अपने प्रिपरेशन को अभी से शुरू करो, बिकॉज अभी 1 to 6 का SSB का डेट्स आने शुरू हो गए. वंस दैट इज ओवर, आई एम श्योर थोड़ी देर के बाद आपका भी आना शुरू हो जाएगा. सो यू हैव टाइम, समय रहते तैयारी करो. 4-5 महीने से ज़्यादा मिलेगा, एंड दैट्स एडिक्वेट अगर आप अपने ऊपर जोर से काम करोगे. सो डेफिनेटली पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है तो कंफर्ट जोन में तो नहीं होगा. इनफैक्ट कंफर्ट जोन में रहते हो तो वो अपने आप में आपका एक वीकनेस है व्यक्तित्व में. समझे क्या बोल रहा हूँ? अगर आप एक लेजी व्यक्ति हो, कंफर्ट जोन में रहते हो और कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करते, तो आपके व्यक्तित्व में एक फ्लॉ है कि आप मिलिट्री लीडरशिप में जाना चाहते हो लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते. तो पहले तो कंफर्ट जोन छोड़ो, आपकी कमियों को आइडेंटिफाई कर उसको दूर करना, इस मानसिक अवस्था में आ जाओ. नंबर 2, अगर आप सोच रहे हो कि अगले 5-6 महीने SSB आने से पहले अपने ऊपर तैयारी करने की जगह
किसी कोचिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स लोगे ताकि आप एसएसबी को कुछ उल्टा पुल्टा करके मैनिपुलेट करके रेकमेंड हो जाओगे, तो ये वेस्टेज ऑफ एफर्ट है। आप अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के जाओगे तो वो आपको गाली देता है। तो आप एक ऐसे एसएसबी में जाना चाहते हो जिनके पेन में इतनी ताकत है कि एक जवान से आपको ऑफिसर बना देगा, तो उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाना। उन्हें बेवकूफ़ बनाने का सोचने का मतलब है कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो और उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये सोच अपने आप में गलत है। सो गेट आउट ऑफ दिस थिंग। सो एनीवन हु सेज कि हमारे पास आ जाओ, हम हर गधे को घोड़ा बना देते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। आर्म फोर्सेस जो है वो मिलिट्री लीडरशिप को ढूंढ रहा है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर लायर्स एंड चीटर्स जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बेस पे जा रहा है, तो ये भी नहीं करना। एंड सेकेंडली देखो, मैं भी आपके जैसे एक जवान से ऑफिसर बना हूँ। मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स बना के ना मैं रेकमेंड हुआ हूँ और ना मैं वो करता तो शायद ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर बनता 11 एसएसबी एंड 21 एसएसबी में। तो मैं एक ना सिर्फ एक सर्विस कैंडिडेट हूँ, मैं एक सर्विस कैंडिडेट के होते हुए ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर था। एंड सब्सिक्वेंटली आई डिड रिसर्च वर्क परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन, जिसमें कि तीनों ही टेक्निक के अंदर बहुत गहराई में उतर गया था। एंड देन केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एसएसबी का जो AFOCP का मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। सो उस नाते से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंड, बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, खुद को डेवलप करेंगे। 5 दिन 3 लोगों को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एंड उसके बाद में आई स्पोक अबाउट दिस रिसर्च वर्क परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन। आप AFOCP के चैनल पे मारोगे तो यू गेट दिस वीडियो, उसको देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली मैंने ये काम टिप्स एंड ट्रिप्स से नहीं किया, और उससे भी ज़्यादा आप भी जब 3014 पीपल वहाँ पे जाओगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका ये ट्रेनिंग में क्लियरली 3 डायमेंशंस है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आज भी मेरे ऊपर भी लागू है, ये आपके ऊपर भी है। तो आप जब एसएसबी में जा रहे हो, मैं GTO था या साइकोलॉजिस्ट था इंटरव्यू में, मैं आपको जब देखूंगा तो आपके एसएसबी के प्रिपरेशन के 3 चरण है या 3 स्टेजेस है। पहला है द प्रिपरेशन स्टेज, और प्रिपरेशन के आधार पर एसएसबी में जाके 5 दिन आपका परफॉर्मेंस स्टेज, एंड परफॉर्मेंस स्टेज के अंत में कॉन्फ्रेंस में आपका आउटकम स्टेज। ना आप लोग सब एक अच्छा आउटकम चाहते हो, लेकिन आउटकम अच्छा तभी आएगा जब आप प्रिपरेशन स्टेज में सही करोगे। एंड जब प्रिपरेशन सही होगा तो एसएसबी में परफॉर्मेंस सही होगा, और जब परफॉर्मेंस सही होगा तो आउटकम वही आएगा जो आप चाहते हो। जैसे कि आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई किया इसलिए आपका नाम 3014 में आया, लेकिन इसके आधार पर आप ये आउटकम स्टेज में रेकमेंड नहीं हो सकते। और वो भी आपको पता है आपके बैच में 75 का मतलब है 2.5%। सो जो आपने रिटर्न किया बहुत बढ़िया किया, बट इस रिटर्न के आगे का जो एसएसबी की तैयारी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, what you do in the preparation stage will determine how you perform in the performance stage, that is in the actual SSB, and based on what you perform in the actual SSB, that is Mansa Vacha Karmana, your outcome will be determined, and of which 75 people अगर 2.5 clear हो जाते will go to the academy. So that's the equation. So प्रिपरेशन में गड़बड़ करोगे तो परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो जाएगा, और परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो जाएगा तो आप इस 2.5 में नहीं आओगे। तो अगर ये समझ में आ रहा तो मुझे जरूर कमेंट में लिख के आना, प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस, आउटकम, इसका लिंक समझ में आ रहा है। सो प्रिपरेशन विल बिकम द कॉज एंड परफॉर्मेंस विल बिकम द इफेक्ट, and performance itself will become the cause for the subsequent effect. That's your clearance through the SSB. So इस कड़ी को समझना, और इसके लिए मैं कुछ आपको हिंट भी देता रहूँगा। तो पहला चीज़ है आपको प्रिपरेशन की शुरुआत में ही क्लैरिटी कि आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है, कितनी दूरी है और कितना इसमें भरने में समय लगेगा, और ये किस किस डोमेन में, फिजिकल डोमेन में, इंटेलेक्चुअल डोमेन में, इमोशनल डोमेन में या वैल्यू डोमेन में। जैसे 4 फैक्टर्स ऑफ दी OLQs, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, हर फैक्टर्स के बारे में आपको। सो अब आप खुद ही देखो, अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी ना हो, इफ यू डू नॉट हैव दिस क्लैरिटी, इट विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस ऑन द वे यू परफॉर्म। तो मुझे बताना, जब आपके अंदर क्लैरिटी ना हो तो उसका असर परफॉर्मेंस में क्या पड़ता होगा,
क्या आपका परफॉर्मेंस आपको रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाएगा या नॉन रिकमेंडेशन की तरफ, जब यू आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ क्लैरिटी? मुझे जरूर सोच के बताना। तो शुरुआत, लेट्स डू इट विथ क्लैरिटी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एसएसबी? आपको एसएसबी से क्या चाहिए वो तो बड़ा क्लियर है, बट क्या आपको ये क्लियर है कि आपने एसएसबी को क्या देना है? अगर 2.5% लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे आउट ऑफ 3014, इसका मतलब है डेफिनेटली आप जो एसएसबी को देने की तैयारी कर रहे हो वो एसएसबी को चाहिए ही नहीं। तो जब आप उन्हें नहीं दोगे तो आपको वो क्यों देगा? सो दैट्स अ इशू। नेक्स्ट इज, इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले आप ये देख लो आपके वो क्या स्ट्रेंथ है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाने में मदद करेगा, और वो क्या वीकनेस है जो आपको नॉन रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है? अगर है तो ये सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, अगर अच्छा नहीं है तो ये आपको परफॉर्मेंस में नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, आप खुद ही बताना कि वो जो चीज़ें वो आपका स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। स्ट्रेंथ है तो आप सक्सेस की तरफ मूव करोगे, और अगर वो वीकनेस है तो आपका वो नॉन रिकमेंडेशन की तरह जाएगा। और अगर वो वीकनेस है तो आई विल लाइक टू नो व्हाट एक्शन प्लान यू आर मेकिंग एज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन सो दैट योर परफॉर्मेंस improves by the time you go to the SSB. So SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities and threat क्या है? In the Air Force भी जो सेल्फ मैनेजमेंट SML के क्लासेस में this is done quite in detail. You cannot go and Google your strengths and weaknesses. Google cannot tell you what are your strengths and weaknesses. किसी recommended candidate का या किसी कोचिंग के बुक का क्वालिटी लिखने से वो आपका नहीं होता, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, अपना अपना PIQ देखो, उसको भरो साफ सुथरे हैंडराइटिंग में। देयर इज अ वीडियो अंडरस्टैंडिंग PIQ, उसको भरो और देखो कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। जैसे मेरा ये है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ पे प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस हो, आपका स्कूलिंग कहाँ कहाँ पे हुआ है, उसके आधार पर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन इसके मार्क्स देखो, और देखो डज योर PIQ गिव्स यू स्ट्रेंथ और डज इट गिव यू वीकनेस। जैसा मेरा इज अ वीक PIQ, मेरा एक वीक PIQ है। इसको देखते ही साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसको सोचेगा अरे कैसा लड़का, सुविधा मेरे सबका लड़का ढीला ढाला है। तो आप देखो जिन लोगों का ये, मान लो किसी का 92% है, 12th में किसी का 90% है, और 11th का तो चलो छोड़ दो, 12th का 90%, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक PIQ दैट पुट्स थिंग्स इनटू मोशन। बट मेरा बहुत वीक है, तो आपका वीक PIQ है या स्ट्रॉन्ग PIQ? एंड चेक करो जो भी जैसा भी है इसका असर क्या होगा। एंड हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? How do I explain why I got 53%, why I got 42, why I took a drop in 12th, and why I joined the army and then did my 12th in the army and then came for ACC, why now I want to become an officer? This is very complex. इसमें आपको वो खोद देगा probing question में. So check करो how is your family, education, relationship, profession, hobbies and interest, current affairs, GK, self-evaluation. These are the CIQs, various CIQs in the interview. How are you going to respond to them? और जो भी respond देखो उसमें what are the likely probing questions? Likely probing questions. And उनके answers के through आपके बारे में interviewing officer क्या image build करेगा, और जो भी image build करेगा will it lead you to success or will it lead you to failure? Check करो, है ना। माइन इज अ वीक PIQ। तो जब आप क्लास में आओगे तो मैं बताऊंगा इस वीक PIQ के साथ मैंने ऐसा क्या किया कि उसके बावजूद द इंटरव्यूइंग ऑफिसर फेल्ट लाइक recommend me. I have already made a video by the name how to identify mistakes and eliminate them. उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी बातें अपने बारे में और अपने प्रिपरेशन के बारे में बताया हुआ है कि जीवन में गलती करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती को करके उसे एक्सेप्ट ना करना
और उससे सीख ना लेना और उससे करेक्शन करके मूव ऑन ना करना, वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है रिपीटेटिव मिस्टेक को माफ करना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे में देखो रिपीटेटिव है 53 और नीचे 42 नॉट इंटरेस्टेड, सो माइन इज ए डिक्लाइनिंग ग्राफ। सो हाउ डिड आई हैंडल इट? इट विल बी इंटरेस्टिंग, सो विल सी दैट। नेक्स्ट इज, आपको पता है OLQs, एवरीबडी नोज OLQ. The question is not OLQ, question is do you have it in you? So for example, first is factor 1 planning and organization, जो कि आपके IQ से रिलेटेड है। तो आपको पता है फैक्टर 1 के 4 क्वालिटीज है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी। आप जो भी अपने प्रिपरेशन के नाम से एक्ट कर रहे हो, वो प्रिपरेशन शुड एनहांस योर परफॉर्मेंस। अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये वीक है, अगर ये वीक है और आप इसकी सिर्फ चिंता करो, चिंता करने से परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं, बिकॉज चिंता से ये इंप्रूव नहीं होगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ना अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आप ऑप्शन क्या ले रहे हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, whatever option you take, whether A or B, it should enhance your performance. If it is not enhancing your performance, then you are not able to handle that problem, which is going to become an obstacle between you and your goal. आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। रिजल्ट आ गया है, ACC रिटर्न देने के बाद से, रिजल्ट आने के बाद से SSB के डेट तक, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB? यूनिट के कमिटमेंट्स भी होंगे, टाइम भी नहीं मिलेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, बहुत कुछ होगा। कुछ लोग YLC जाएंगे, कुछ लोग PDP पचमढ़ी जाएंगे, कुछ लोग कोचिंग जाएंगे। वॉट एवर यू डू, आप SSB के नाम से क्या तैयारी कर रहे हो? क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ रहे हो? क्या आप SSB की वास्तविकता जानना चाहते हो? क्या आप मीठा झूठ सुनना चाहते हो, या क्या आप कड़वा सच सुनना चाहते हो? कड़वा सच नहीं सुनना चाहते तो क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि जब तक कड़वा सच नहीं सुनोगे तो आपके अंदर सुधार कैसे आएगा? एंड आप जो भी कर रहे हो, द ऑप्शन यू शुड चूज, A लो या B लो, it should take you to an improved performance. Only then your chances of getting recommended will improve. So that's a matter of intelligence. So use your intellect. आपका preparation stage में जो भी आप choose करोगे, that will determine how you perform. And last is power of expression. आज का date, for example, today is 18th September 2022. 18 सितंबर 2022 को आपका अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल या पावर ऑफ एक्सप्रेशन वीक है, वो चलेगा। लेकिन 18 अक्टूबर 2022 को भी अगर वीक है, इसका मतलब आपने सितंबर 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक कुछ भी अपने ऊपर काम नहीं किया अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और उसके बाद अगर नवंबर में भी बदली नहीं हुआ, दिसंबर में भी नहीं हुआ, जनवरी में नहीं हुआ, और आपके SSB के डेट तक आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, करंट अफेयर्स, GK, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, मस्ट नो स्टफ, ये सब अगर आपका एनहांस नहीं किया, इसका मतलब है 18 सितंबर 2022 से लेके आपका SSB के डेट तक आपने इन डोमेन के ऊपर कमजोरी होते हुए भी, वीकनेस होते हुए भी इसे इंप्रूव नहीं किया। इसका मतलब आपने डेल्टा को रिड्यूस नहीं किया। आपका रिकमेंडेशन चैलेंजिंग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यू विल नॉट कम इनटू 2.5%। सो आज वीकनेस है, चलेगा, लेकिन एक महीने बाद भी वीकनेस है, तब नहीं चलेगा। दैट इज अ क्लियर इंडिकेटर यू आर नॉट वर्कड ऑन योरसेल्फ। सो लेट्स टॉक अबाउट पावर ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। आपको पता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब ये मुझे भी हिंदी पसंद है। आई एम फ्रॉम केरला, मेरी मातृभाषा मलयालम है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसके बावजूद इंग्लिश इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन SSB। ये मुझे भी पता है, आपको भी। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता, तो सवाल आता है कि अगर ये आपका वीक है, तो इसे क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे हो?
और अगर आप इसे इम्प्रूव किए बिना अगर एसएसबी में चले जाते हो और मैं आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तो आई विल आस्क यू कि भाई कैंडिडेट, व्हाई हैव यू नॉट वर्कड ऑन टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल? This should have happened from the time you applied for or you decided that you'll go for ACC, even before written. तो आपको रिटर्न टेस्ट के लिए 5 महीने प्रिपरेशन के लिए दिया, HRDC में गए, उसके बाद SSB का रिजल्ट आने तक आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना मिला, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद, रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद 5-6 महीने फिर मिला, तो 6 महीने प्लस 5 महीने ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा का टाइम है. तो क्वेश्चन इज वाई इज योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल नॉट इम्प्रूव्ड? ये सवाल आएगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्या बोलना है. सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इज इट डेवलप्ड, हैव यू स्टार्टेड डेवलपिंग? इफ नॉट, डू इट नाउ, अदरवाइज विल गेट इनटू ट्रबल. मुझे जरूर बताना क्या समझ में आया. नेक्स्ट इज नॉट ओनली इंग्लिश speaking skills, vocabulary, grammar and all that, you have to improve your public speaking skill. खुद से बात नहीं करना, you have to speak to a group. So not only you have to practice English communication skill, you have to also practice public speaking skills, and this has to start from right today. In fact, from the day you applied for, वहाँ से अब ये सब बोला सर मुझे मौका नहीं मिला. आपको मौका पास्ट में नहीं मिला, but you today you are getting 18 September 2022 is before you. सर लोग मजाक उड़ाते, that's your problem. लोग मजाक उड़ाते, बट रेकमेंड भी तो आपको ही होना है. सो इंग्लिश पब्लिक. नेक्स्ट इज भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, तो विचारों के ऊपर भी काम कर लेना. कंटेंट, इसको रोट मेमोरी पे मत करना. रोट मेमोरी मतलब इसको रट्टा मार के मत जाना, बिकॉज अगला बंदा आपको समझना चाहता है और आप 3 इडियट की तरह थुचुक थुचुक प्राण घटकम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. सो कंटेंट, अब कंटेंट में देयर इज वैरायटी. आई विल टेल यू सम ऑफ देम. करंट अफेयर्स, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स 3 महीने करूँ 6 महीने, इट्स नॉट 3 महीने 6 महीने. इट्स अबाउट करंट अफेयर्स का साथ इश्यू होता है कि इट्स नॉट न्यूज सुनाना, इट्स विश्लेषण. जैसे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो यू विल बी आस्क्ड कि व्हाट आर द रूट कॉजेस फॉर श्रीलंका टू फेस सच इकोनॉमिक क्राइसिस. रशिया यूक्रेन के वॉर के पीछे का हिस्ट्री क्या है, नाटो का फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट क्या हुआ, यूएसएसआर क्यों टूटा, वार्सो पैक्ट क्या है, रशिया के साथ ये नाटो, अभी नाटो का रिलेवेंस क्या है जब रशिया वार्सो ही टूट गया, यूएसएसआर भी टूट गया. चाइना और चाइना रशिया का दोस्त, रशिया इंडिया का दोस्त. कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो रशिया किसका साइड देगा? इंडिया पेट्रोलियम खरीद रहा है रशिया से, उसका असर क्या होगा? इट्स नॉट अबाउट न्यूज़, इट्स अबाउट एनालिसिस ऑफ द न्यूज़. इसको करना शुरू कर देना. इसमें नेशनल न्यूज़ पे भी करना, इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी करना. किसी को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप करना 9090099035 पे, एंड आई विल शेयर यू कपल ऑफ टॉपिक्स दैट you must prepare, must know stuff वाले, you must prepare, and so that I'll share it in the WhatsApp group. जो WhatsApp group है उसमें शेयर करूँगा, इंडिविजुअली नहीं शेयर करूँगा. तो put it in the WhatsApp group or you can join the Telegram FOSP का Telegram channel. Next is general knowledge, सामान्य ज्ञान. adequately improve करो अपने आप को, because आप एक भारतीय सेना में अधिकारी बनने जा रहे हो, कुएं का मेंढक की तरह मत जाना. सो प्लीज स्टार्ट इंप्रूविंग योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, है ना. इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, अभी क्या बोलते हैं, इजराइल, यूएसए. नॉट ओनली इमीडिएट पड़ोसी बट ऑल कंट्रीज विथ विच इंडिया हैज इट्स इंटरेस्ट. सो ईरान, अभी सऊदी अरेबिया, अभी मंगोलिया, आप कहाँ पे अपना, सॉरी आई फॉरगॉट दैट, कि अभी प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली एक ऐसे कंट्री में गए जिसमें पहले कभी नहीं गया था, फॉरगॉट दैट नेम. चाइना और इंडिया के बीच में इट्स अ बफर स्टेट, विल सी दैट. सो इंटरनेशनल अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रैंक स्ट्रक्चर, कमांड स्ट्रक्चर, मेजर वेपन सिस्टम, doctrines, primary and secondary task of armed forces, Indian armed forces, chief, service chiefs, weapon system, formation, training centers, whole lot of things, major weapon system and all those things, submarines, INS Arihant भी अभी launch हुआ है. So you have to update it, है ना. Must know stuff, there are certain must know stuff जिसके ऊपर आपका जवाब sorry sir I don't know हो ही नहीं सकता.
चेक करो ये सब आप कर लिए हो, करना शुरू कर दिए हो, नहीं किया तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज दिस विल बी पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन स्टेज। मैं आपको ये एक एसएसबी का 4 साल का तजुर्बा प्लस परसेप्शन मैनेजमेंट, यू जस्ट इमेजिन जब ये सब नहीं होगा, प्लीज इमेजिन हाउ विल इट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एट द एसएसबी एंड व्हेन इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस व्हाट इज द लाइकली आउटकम, क्या आप रेकमेंड होगे या नॉन रेकमेंड होगे। आप सोच के देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओगे तो कंफर्ट जोन में तो रहोगे, लेकिन आपका रिकमेंडेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा बिकॉज उन्हें भी पता आप बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना। सो क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, क्या आप अपने कम्युनिकेशन में इतनी क्लैरिटी ला सकते हो कि आप यकीन कर सकते हो कि आप जो भी बोलोगे कर्मा वाचा मानसा के थ्रू, वो इन तीनों लोगों को समझ में वैसा ही आएगा जैसा आप उन्हें समझाना चाहते हो। मतलब साइक को लिख के आपका TAT WAT में जो भी लिखे, दे अंडरस्टैंड इट द वे यू वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मानसा वाचा कर्मणा में ऐसा कम्युनिकेट करे कि उन तीनों को वैसा ही समझ में आए जैसे आप उन्हें समझाना चाहते हो। कान के पर्दे नहीं बजाना है, दिमाग की बत्ती जलाना है। सो अगर ये नहीं कर पाते हो, अगर आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, तो आप सोचो ये आपको किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। ये शायद आपको स्टेज 1 में ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगा। सो देर इज़ अ वीडियो मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन, से जरूर देखना। नेक्स्ट इज भावनात्मक पहलू, इंटरपर्सनल स्किल्स, EQ। क्या सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर, सोशल एडजस्टमेंट में तो इसके अंदर 3 क्वालिटीज़ है। क्या आप टीम में काम कर सकते हो, क्या आपको इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़िया है, क्या योर ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज स्ट्रांग, या आप दूसरों के ओपिनियन से घबरा जाते हो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो कोऑपरेशन, सहयोग करने की भाव, क्या आपको ये लगता है 1 और 1 11 होता है, या मेरे प्रमोशन के लिए दूसरों को नीचे दबाना पड़ेगा। कैसी सोच है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप अपने प्रिपरेशन की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, स्वॉट एनालिसिस, ऑल दोज थिंग्स, है ना। एंड फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस, है ना। सोशल इफेक्टिवनेस में क्या आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता है, नकली इनिशिएटिव नहीं, सस्टेन्ड एफर्ट in spite of obstacles and setback. So इनिशिएटिव, पहल करते हो, यूनिट में पहल करते हो, घर में पहल करते हो, समाज में पहल करते हो, या पीछे पीछे रहते हो। आर यू अ फॉलोअर और अ लीडर। नेक्स्ट इज आत्मविश्वास। आत्मविश्वास खोखला नहीं, आत्मविश्वास विथ सब्सटेंस, सब्सटेंस के साथ। मूर्खों का एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, वैसा वाला नहीं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास तभी आएगा, आत्मा का विश्वास, जब when you understand yourself, when you understand your strength, when you understand your weakness, then you get a different level of confidence, and confidence can be built up with practice. निर्णय लेने की शक्ति, वो भी तीव्रता के साथ। क्या आप स्पीड से डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन मेकिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम डिफाइनिंग, ऑप्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस, conflict resolution skill, decision making, judgment, implementation, action and achieving the goal. इस पूरे के ऊपर आधारित है what led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome. तो क्या आप speed of decision, problem solving skills आप आता है, डेवलप किए हो, या उसे टिप्स एंड ट्रिक्स से करने वाले हो। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। क्या आपके कम्युनिकेशन में इतना प्रभाव होगा कि आप दूसरों को प्रभावित कर पाओ। अगर आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट हो, अगर आपके अंदर कंटेंट नहीं है, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके अंदर अपने क्षमताओं के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर करोगे। सो अगर ये नहीं करोगे, कैन यू इमेजिन हाउ विल इट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एंड हाउ विल इट अफेक्ट योर रिकमेंडेशन। आपको रिकमेंड होना है, लेकिन आपको पता है 2.5% भी लोग सेलेक्ट नहीं होते। सो इट्स गोइंग टू बी, है ना। So what you do in the preparation stage is very important, because this is going to determine how you perform, and this is going to determine how is going to be your likely outcome. You all want to get recommended, but this will not happen unless your preparation is correct. And a preparation of 14 days based on tips and tricks is not going to serve your purpose, because that will be working on the testing tools and not on developing your personality. This takes time. एंड लास्ट इज लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का दूसरा यूँ समझ लो, योर स्ट्रेस
handling capacity. What is your stress handling capacity? Don't say it is good, because if it is good, why is your English communication skill weak and you're worried about it? Why are you not improving it? How do you respond when you fail? So stress response, your response to failure, your ability to bounce back, your ability to bounce back. जीवन की उन घटनाओं को बताओ जहां पे ये सिद्ध करता है कि आपके अंदर बाउंस बैक की काबिलियत है. मेरे बहुत सारे घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ से, वेयर इट इज अ क्लियर इंडिकेटर्स कि अंडर प्रेशर माई परफॉर्मेंस गोज हाई. मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अंडर प्रेशर माई परफॉर्मेंस गोज हाई. जब लोग टूटते हैं मैं बाउंस बैक करता हूँ. ये मेरे अंदर एक बहुत भयंकर स्ट्रेंथ है, विच आई नो. डू यू हैव इट? सो मुझे जरूर बताना. अगर ये ना हो तो इसका प्रभाव आपके एसएसबी के परफॉर्मेंस में क्या पड़ेगा, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं होगा तो आउटकम नहीं आएगा. तो मुझे जरूर बताना. एंड लास्ट इज फैक्टर 4, डायनेमिक फैक्टर्स. इसके अंदर इच्छा शक्ति. इच्छा तो आपके अंदर है, लेकिन क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति है? जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होगी, ना सिर्फ वो प्रॉब्लम को देख सकता है, वो प्रॉब्लम को देखने के बाद वो सॉल्यूशन को भी निकालने की ताकत रखता है. सर्प दृष्टि, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, गरुड़ दृष्टि, प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो क्या आपके अंदर सर्प दृष्टि से गरुड़ दृष्टि एंड गरुड़ दृष्टि से जरूरत पर सर्प दृष्टि में आने की, स्विच करने की क्षमता है? अगर इसको समझना है तो एक वीडियो का नाम है, एफओसीपी का वीडियो है, उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. उसको देखना, उसको देख के समझ में आके मुझे 9090099035 पर मैसेज करना कि क्या समझ में आया. इच्छा शक्ति ना हो तो आप सिर्फ एक ड्रीम देख रहे हो ऑफिसर बनने का, लेकिन ड्रीम विल नॉट मेक यू एन ऑफिसर. इट हैज टू बी बैक्ड अप विद एक्शन, ड्राइव. So there's a difference between goal and dream. So dreams becomes goal when they are directed, actions are taken, planning is done and executed. Only ख्वाब देखोगे तो फिर वो नहीं होगा. तो आपके अंदर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति है? उससे भी ज्यादा, क्या आपके अंदर सच सुनने की शक्ति है, या मीठा मीठा सुनना चाहते हो? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि गणेश बाबू सर की ट्रेनिंग सख्त है इसलिए मैं नहीं करूंगा. आपके अंदर फिर कहाँ से इच्छा शक्ति है? जब तक आपको तराशेंगे नहीं तो आपके अंदर का चमक कैसे बाहर आएगा, है ना. नेक्स्ट इज करेज. करेज, फिजिकल करेज तो होगा. ऑल 3014 जो भी आप लोग हो, 3014 में फिजिकल करेज तो होगा, क्योंकि आप फौजी हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, यंग हो, 5 साल सर्विस वाले हो, तो फिजिकल करेज. लेकिन एसएसबी में फिजिकल करेज से भी ज़्यादा, डू यू हैव मॉरल करेज? क्या आप सही और गलत का भेद कर सकते हो? सही और गलत. एसएसबी के ट्रेनिंग में भी कौन लोग आपको सही बता रहे और कौन लोग टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे, और आप कौन सा ऑप्शन लेते हो, डिफिकल्ट राइट या इजी रॉन्ग वाला? What is your choice? है ना. Do you have the moral courage to look inward and identify your own weakness, accept it and correct it? अगर है, you have something called moral courage. Otherwise no. Next is stamina. Physical stamina आप लोगों में होगा because आप लोग फौजी हो. यहाँ पे physical से ज़्यादा mental stamina. Mental. Can you undertake the mental pressure that you will be subjected to in the military combat situations? उसका एक अंश एसएसबी में आपके अंदर दिखेगा. तो ये सब मुझे बताना. सो दोबारा बोल रहा हूँ, अनलेस यू प्रिपेयर वेल you cannot perform well, and if you cannot perform well you cannot achieve or come into this 2.5%. ये मेरा बहुत conviction के साथ मैं बोल रहा हूँ. So only when you prepare well you can perform well, and when you perform well you will get into this 2.5 category में 75 people who will going to make it. So मुझे जरूर बताना क्या समझ में आया. Now recently ACC 126 and 127 के कुछ लड़कों ने जो मेरे साथ अभी ट्रेनिंग किया है, ये 126 का ऑल इंडिया रैंक 1 था मोहित संजोत्रा. 126 का ऑल इंडिया रैंक 1 था रिटन का. ही वॉज अ स्टूडेंट. उसका अभी एसएसबी का डेट भी आ गया एंड ही इज़ वर्किंग हार्ड. सो रिटन में आना अलग, एसएसबी का तैयारी अलग. सो प्लीज स्पीक टू हिम. प्रवीण कुमार, है ना,
ईश्वर रेड्डी, दे आर ऑल सर्विस कैंडिडेट ACC 126 के, सम ऑफ देम 127, उनका नंबर्स नीचे दिया हुआ है. उसके अलावा इफ़ यू विश टू जॉइन रजिस्ट्रेशन फॉर 2 weeks ऑफ AFOSP ऑफलाइन बैच एट पुणे, इट स्टार्ट्स एवरी मंडे, हर मंडे से, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 numbers 9090099035 और 7798647177. Kindly share with all your friends and do register. Now service candidates को एक common tendency यह आया कि each service candidate came for 2 weeks, some of them extended it beyond 2 weeks. So service candidates के लिए I give you an option to join for not 2 weeks, 3/4 weeks का ऑप्शन भी आपको मैं ओपन रख रहा हूँ, बट यू हैव टू tell me in advance, and there will be a nominal additional fees that you have to pay, but it will help you. One, you should repeat your psych batch, psych classes को 1 week extra लो. It will tremendously bring clarity in your mind, because psychological tests are complex tests. उससे भी worst is आप जो लिखते हो आप साइकोलॉजिस्ट को समझा नहीं सकते, because he has to understand what you have written. तो बढ़िया होगा कि आप उसे रिपीट कर लो, एंड GTO वीक को भी रिपीट कर लो, बिकॉज उसमें आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर बहुत टाइम मिलेगा और प्रैक्टिस का मौका मिलेगा. यूनिट में यू मे नॉट गेट इट. सो दिस इज अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई सजेस्ट यू कि 2 weeks का तो बैच है, बट यू कैन ज्वाइन फॉर 3 weeks/4 weeks, एंड दैट एडिशनल नॉमिनल पेमेंट, दोज डिटेल्स यू कैन टेक इट फ्रॉम मी. उसके अलावा अनिकेत है, संगम खत्री है, साहिल है. यू कैन स्पीक टू देम. दे हैव ऑल बीन एबल टू आइडेंटिफाई द डेल्टा and they are working hard. Some of them will bridge, some of them may not be able to bridge, but I'm sure you will get an idea, and do not delay it. इन लोगों से बात करना, अनिकेत से, संगम से, तो दे विल से कि अरे सर इसको रिटर्न होता ही चला जाना चाहिए, तो उसका वेट नहीं करना. अचिंत्य दत्ता, प्रदीप सिंह, श्रीवास, इन लोगों से बात करना. सम ऑफ देम आर करंटली ऑल्सो इन द क्लास, and you will get an idea that preparation needs clarity. दिशा और गति दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा. assumptions पे मत चला जाना. उसके अलावा अगर किसी को छुट्टी का प्रॉब्लम है और आपको फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसका असेसमेंट चाहिए, पर्सनलाइज वीडियो बेस्ड 1-to-1, so that is also possible. You can contact me on these 2 numbers and we'll do it. फर्स्ट नंबर पे आप मैसेज करना, we'll share you the details. And उसके अलावा देवेंद्र सिंह, an intelligent person. Satvinder Singh is not a service ACC candidate, he is a PCSL का है. Just speak to him and take a feedback. SML and SSB का combined class जो composite batch है, how much he has personally benefited beyond SSB, है ना. वैभव से भी बात कर सकते हो and take a feedback. I'm sure they will give you an insight into how these are beyond SSB. It is based on the concept of self-management leadership. उसके अलावा please start watching the videos on the YouTube channel by typing AFOSOP. 300+ videos are there. Do post your comments there and subscribe it, because उसके ऊपर videos का rates मैंने बढ़ा दिया है, and I'm sure they will be useful to you. उसके अलावा AFOSOP का एक 40 page का handout है, which is made available in the AFOSOP का Telegram channel पे. You can take it from there, or also you can WhatsApp me at 9090099035. You will get it. So obtain that. And I've already told you composite batch 2 weeks का registration offline batch का already available है. Fresh batch starts every Monday. September और October का batch schedule मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. September में the next batch is available from 19th September से लेके 1st of October तक का batch है. And thereafter the next batch is from 26th September से लेके 8th of October तक का होगा. Thereafter from 3rd October से लेके 15th October, 10th October से लेके 22 October, 17th से लेके 29th and 24th onwards. लास्ट में आप चेक कर सकते हो कितना होगा. 31, 1, 2, 3, 4, 5th of November तक. इसके बीच में 24th को दिवाली है,
तो दीपावली के बीच में हम शायद एक वीक का गैप होगा, दैट विल लेट यू नो. You can contact us and find out. Do share this information with your friends. And service center के लिए I already told you, you can plan for 3/4 weeks का program so that you benefit on a nominal cost. So to register, these are the two numbers I've already shared you. So इस number के ऊपर you send me a WhatsApp message. You can give us a call. I'll get back to you. And I hope this video has given you some insight. And to all 3014 service candidates, I wish you luck once again. Prepare well. Only then you can perform well. Only then you'll meet your expectation. Thank you and may God bless you. Thank you very much.